Bismillahirrahmanirrahim. Unit 1, Lesson 2. Disjoint and overlapping sets. Disjoint sets. Two sets A and B are disjoint sets if there is no common element between them. That is, A intersection B is equal to empty set. बेटा जैसा कि नाम से जाहिर है डिसजॉइंट सेट्स टू या टू से ज़्यादा सेट्स जो है उसको हम डिसजॉइंट सेट्स तब कहेंगे अगर उसमें कोई कॉमन एलिमेंट न हो. फॉर एग्जांपल, if A is a set of 1, 2, 3 and B is a set of 6, 7, 8, then these are disjoint sets because A intersection B is equal to empty set. जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेट A और सेट B में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, लिहाजा these are disjoint sets. इसी तरह ओवरलैपिंग सेट्स. Two sets A and B are overlapping sets if there is at least one element common between them and none of these is a subset of the other. Two sets A and B are overlapping sets if there is at least one element common between them and none of them is a subset of the other. That is, A intersection B is not equal to empty set and A is not a subset of B and B is not a subset of A. बेटा ओवरलैपिंग सेट्स के लिए टू कंडीशंस है. एक ये कि उसका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट ना हो, और दूसरा ये कि उसमें से कोई भी सेट दूसरे का सबसेट ना हो. तो जब दो सेट्स ये दोनों कंडीशन पूरे करते हैं तो उसको हम ओवरलैपिंग सेट्स कहेंगे. फॉर एग्जांपल, if A is a set of 1, 2, 3, 4, 5, 6 and B is a set of 5, 6, 7, 8 are overlapping sets because A intersection B in this case is not equal to empty set because 5 and 6 are common elements in these two sets A and B. Also, A is not a subset of B and B is not a subset of A. बेटा इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि इन दोनों सेट्स A और B का जो कंप्लीमेंट है, जो इंटरसेक्शन है, वो नॉन एम्प्टी सेट है, और दूसरा ये कि इन दोनों में से कोई भी दूसरे का सबसेट नहीं है. इसलिए ये दोनों सेट्स जो है ये ओवरलैपिंग सेट्स है. अगला टॉपिक है यूनिवर्सल सेट एंड कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट. फर्स्ट, यूनिवर्सल सेट. ए सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इन ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट एंड इज डिनोटेड बाय सिंबल दिस. बेटा अगर हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम हो तो उसमें जितनी भी सेट्स हो, तो अगर उन सेट्स के तमाम एलिमेंट्स एक सेट में मौजूद हो तो वो सेट उस प्रॉब्लम के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ अंडर कंसिडरेशन then the set of all
integers will be universal set. That is, universal set will be equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on. That is, universal set will be the set of all integers. दूसरा टॉपिक है complement of a set. If A is any subset of universal set U, then the complement of set A is denoted by A dash or A ऊपर small c and is given by A complement is equal to universal set minus A set. Universal set difference A set. दोबारा देखो, if A is any subset of universal set U, then the complement of set A is denoted by A dash or A C and is given by A complement is equal to universal set difference A set. In set builder form, this can be written as A complement will be equal to universal set difference A, which is equal to set of all x such that x belongs to universal set and x does not belongs to set A. For example, if A is a set of 1, 2, 3 and universal set is the set of 1, 2, 3, 4 up to 10, then A complement will be equal to universal set difference A set is equal to universal set minus set A, which gave us the set of 4, 5, 6, 7 up to 10. तो बेटा ये जो सेट है ये हमारे पास A कंप्लीमेंट के बराबर आएगा. बेटा अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ. एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, if A is a set of 1, 2, 3, 4, 6, 12 and B is a set of 3, 6, 9, 12, 18, then find A difference B and B difference A and check whether these two are equal. तो इसका सलूशन, पहले हम A डिफरेंस B मालूम करेंगे और फिर B डिफरेंस A मालूम करेंगे और देखेंगे कि क्या इससे इक्वल सेट्स आते हैं या मुख्तलिफ सेट्स आते हैं. तो A डिफरेंस B में हम सेट A पहले लिखेंगे, फिर माइनस सेट B लिखेंगे और इसमें से हम सेट A के एलिमेंट्स से सेट B के एलिमेंट्स माइनस करके बाकी जो एलिमेंट्स रह जाते हैं वो हमने लिखने हैं. तो यहाँ पे A डिफरेंस B से हमारे पास आएगा सेट ऑफ 1, 2 एंड 4, क्योंकि सेट A में से हम 3, 6 और 12 जो है वो माइनस करेंगे, वो ख़त्म करेंगे, वो नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास रह जाएंगे एलिमेंट्स 1, 2 एंड 4. ठीक है. इसी तरह B डिफरेंस A में हम सेट B पहले लिखकर उससे सेट A माइनस करेंगे, तो इससे हमारे पास सेट आएगा सेट ऑफ 9 एंड 18. अगर इसको हम इक्वेशन A का नाम दे दें और इसको इक्वेशन B का नाम दे दें, तो अगर हम इक्वेशन A और इक्वेशन B को टैली करें तो इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों सेट्स जो है ये इक्वल नहीं है. लिहाजा हम लिख सकते हैं कि A डिफरेंस B इज़ नॉट इक्वल टू B डिफरेंस A. ठीक है बेटा. अब सेकंड क्वेश्चन में दिया है, ए यूनिवर्सल सेट इज़ a set of 1, 2, 3 dash dash up to 20, then find complements of the following sets. One number A is a set of 2, 4, 6 up to 20 and B is a set of 1, 3, 5
अप टू 19। तो ये सेट्स हमें गिवन है और यूनिवर्सल सेट भी हमें गिवन है, तो इसके हमने कम्प्लीमेंट्स मालूम करने हैं सेट ए और सेट बी का। इसी तरह हमें सेट सी गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18, और सेट डी गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है 4, 8, 12, 16 एंड 20। तो ये ए बी सी डी सेट्स हमें गिवन है, साथ यूनिवर्सल सेट भी गिवन है, तो इसके हमने कम्प्लीमेंट्स मालूम करने हैं। सबसे पहले हमने ए सेट का कम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो ए कम्प्लीमेंट जो कि बराबर होता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए सेट। लिहाजा ए कम्प्लीमेंट में हमने ए सेट लिखकर यूनिवर्सल सेट लिखकर पहले उससे माइनस करना है सेट ए को। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से ए सेट के एलिमेंट माइनस करके हमारे पास ये एलिमेंट्स आएंगे ए कम्प्लीमेंट में 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन अप टू 19। इसी तरह बी कम्प्लीमेंट भी हम इसी तरह मालूम करेंगे। बी कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी सेट। सो बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स से सेट बी के एलिमेंट्स माइनस करके हमारे पास इवन नंबर्स आएंगे सेट ऑफ 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टू 20। पार्ट 3 में हमें सी कम्प्लीमेंट मालूम करना है जो कि यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सेट सी के बराबर होता है। यूनिवर्सल सेट जो कि 1, 2, 3 अप टू 20 नेचुरल नंबर्स, और सेट सी जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 3 है अप टू 18। तो ये एलिमेंट्स माइनस करके हमारे पास आएगा सी कम्प्लीमेंट 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 एंड 19, 20। तो ये सेट हमारे पास हासिल होगा। और आखिर में हमें जो दिया है यूनिवर्सल सेट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 जो है डी सेट के लिए वो तुमने खुद हल करना है, वो आपका होमवर्क। और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें हमें यूनिवर्सल सेट दिया है 4, 8, 12, 16, 20 और हमने मालूम करना है यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट और एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका तो आपको आता है कि हम किसी सेट का जब कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं तो उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट का जब हम कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो यूनिवर्सल सेट से हमने डिफरेंस लेना है यूनिवर्सल सेट का। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट, चूँकि ये दोनों तो सेम सेट है इसलिए इस सेट से ये सेट इस सेट के एलिमेंट्स माइनस होकर हमारे पास कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं बचेगा, लिहाजा इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट। सही है बेटा। यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट आता है एम्प्टी सेट। ये बेटा आपने याद रखना है कि यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट होता है एम्प्टी सेट। इसी तरह अगर हम एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं तो यूनिवर्सल सेट से हम एम्प्टी सेट को माइनस करेंगे। ये है यूनिवर्सल सेट, इससे माइनस करते हैं एम्प्टी सेट को, तो इससे जो आंसर आएगा वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। लिहाजा एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट आता है यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट आता है एम्प्टी सेट। 4 number question. If universal set is the set of A, B, C, D, E, F, A is the set of A, B and C, and B is the set of C, D, E and F, then find A union A complement, A intersection A complement, and check that whether
A union A complement is equal to U universal and A intersection A complement is equal to empty set. First we find A complement. A सेट तो हमारे पास है, तो हमने पहले A complement मालूम करना है. A complement मालूम करने का तरीका तो आपको आता है कि यूनिवर्सल सेट से A सेट का हमने डिफरेंस लेना है. यूनिवर्सल सेट ये है, इससे A सेट माइनस करते हैं. तो जब हम यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट से सेट A के एलिमेंट जो कि A B C है ये माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी बचेंगे D E F. तो ये हमारे पास सेट आएगा A complement. अब A सेट भी हमारे पास है और A complement भी है, लिहाजा इसका हम यूनियन और इंटरसेक्शन मालूम कर सकते हैं. A यूनियन A complement, तो हम A सेट लिखेंगे और यूनियन A complement सेट लिखेंगे. दोनों का यूनियन मालूम करेंगे. इससे हमारे पास सेट आएगा A B C D E और F का, जो कि बराबर है यूनिवर्सल सेट का. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट. अब हमने इन टू सेट्स A और A कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन मालूम करना है. तो दोनों सेट्स लिखकर दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे. दोनों सेट्स में चूंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, लिहाजा इन दोनों का कंप्लीमेंट आएगा एम्प्टी सेट. सही है बेटा. तो इक्वेशन A और इक्वेशन B को जब हम देखते हैं तो हमें इससे हासिल होता है कि A यूनियन A कंप्लीमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर और A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट इससे एम्प्टी सेट आता है. ठीक है बेटा. तो इन रिजल्ट्स को हम इस तरह हाईलाइट करेंगे कि A यूनियन A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट एंड A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट. इससे पता चलता है कि जब भी हम किसी सेट का उसके कंप्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे तो उससे हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और जब एक सेट का उसके कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो उससे एम्प्टी सेट हासिल होगा. अगला क्वेश्चन जो है वो है इफ U दैट इज़ यूनिवर्सल सेट is a set of 1, 2, 3 up to 10, that is first 10 natural numbers, and A is the set of 1, 3, 5, 7, 9 first odd numbers, 5 odd numbers, and B is the set of 2, 4, 6, 8, 10, that is even numbers up to 10. तो ये सेट्स हमें गिवन है and we have to find A union B whole complement, A intersection B whole complement, A complement intersection B complement, A complement union B complement, A intersection B complement and B intersection A complement. तो सबसे पहले जो हमने मालूम करना है A union B whole complement. तो A union B whole complement मालूम करने के लिए पहले हम A union B मालूम करेंगे और फिर इसका हमने कंप्लीमेंट मालूम करना है. A यूनियन B का तरीका तो आपको आता है कि A सेट और B सेट दोनों लिखकर उसके दरमियान यूनियन का साइन डालेंगे और दोनों सेट का यूनियन मालूम करेंगे. तो ऐसे हमारे पास आएगा सेट ऑफ 1, 2, 3, 4 अप टू 10. ये तो बराबर है यूनिवर्सल सेट का. अब हमने इस A यूनियन B का कंप्लीमेंट मालूम करना है जो कि बराबर होता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस A यूनियन B. तो यूनिवर्सल सेट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स और A यूनियन B सेट से भी हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आए हैं. ये दोनों सेट्स जो है ये सेम सेट्स है, इक्वल सेट्स है, लिहाजा इन दोनों के डिफरेंस से हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा. लिहाजा A यूनियन B होल कंप्लीमेंट जो है वो एम्प्टी सेट के बराबर है. दूसरा है A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट. तो इसके लिए भी हमने पहले A इंटरसेक्शन B मालूम करना है. A और B सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है. अब हमने इन दोनों के इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट मालूम करना है जो कि बराबर है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस A इंटरसेक्शन B. तो यूनिवर्सल सेट ऑफ फर्स्ट
10 नेचुरल नंबर्स और माइनस ए इंटरसेक्शन बी से एम्प्टी सेट। तो इस सेट से जब हम एम्प्टी सेट को का डिफरेंस निकालेंगे तो उससे दोबारा यही सेट आएगा जो कि यूनिवर्सल सेट है। ठीक है बेटा। 3 नंबर पार्ट में ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट मालूम करना है। पहले हमने ए कंप्लीमेंट मालूम करना है, फिर बी कंप्लीमेंट मालूम करना है और फिर इसका हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो ए कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए ए का यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस मालूम करना है। यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट, तो इससे हमारे पास सेट ऑफ 2 और 6 8 10 आता है जो कि सेट बी के बराबर आता है। अगर हम देखें तो ये सेट बी के बराबर। इसी तरह बी का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सेट बी, यूनिवर्सल सेट से बी सेट को माइनस करते हैं तो इससे सेट आता है सेट ऑफ 1 3 5 7 9 और ये बराबर है सेट ए का। अब हमने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन मालूम करना है। ए कंप्लीमेंट सेट लिखेंगे और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट सेट लिखेंगे। दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। चूंकि दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, लिहाजा इन दोनों के इंटरसेक्शन से आता है एम्प्टी सेट। और 4th नंबर में है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ऑलरेडी हम ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट मालूम कर चुके हैं 3 नंबर पार्ट में, तो हम डायरेक्ट इसका अब हम यूनियन मालूम करते हैं। ए कंप्लीमेंट सेट यूनियन बी कंप्लीमेंट सेट लिखकर इन दोनों का यूनियन, तो इन दोनों को कंबाइन करके इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम लिखेंगे तो इससे सेट हासिल होता है सेट ऑफ 1 2 3 अप टू 10 जो कि यूनिवर्सल सेट यू के बराबर है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो ए सेट भी हमारे पास ऑलरेडी है और बी कंप्लीमेंट भी हम मालूम कर चुके हैं, तो डायरेक्ट हम इसको लिखकर यहाँ पे इन दोनों सेट्स का हम इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। चूँकि ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल है, सेम है, लिहाजा इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो भी यही सेट आएगा ए, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स और इसके तमाम एलिमेंट्स एक जैसे है तो तमाम एलिमेंट्स इसके कॉमन है, इस वजह से ये आंसर आएगा। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, तो ये भी हम डायरेक्ट लिखकर सेट बी और सेट ए कंप्लीमेंट दोनों मौजूद है हमारे पास और इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं। ये दोनों सेट्स भी आपस में सेम है, इसलिए इसका इंटरसेक्शन भी यही सेट बी आता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है फाइंड वेदर द सेट्स P and Q are overlapping sets or disjoint sets। हमें सेट्स दी है और इसमें हमने ये देखना है कि ये ओवरलैपिंग सेट्स है या डिसजॉइंट सेट्स है। बेटा यहाँ पे हमें P और Q सेट्स दी थे, जबकि यहाँ पे ए बी और ए बी सेट्स नीचे गिवन है, इस वजह से यहाँ पे हम इसको भी ए और बी बनाते हैं। तो सेट ए हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 35 एंड 60 और सेट बी जो है वो नेचुरल नंबर्स बिटवीन 50 एंड 80 है। तो अगर इन सेट्स को हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह हम लिख सकते हैं कि A इज़ द सेट ऑफ 36, 37, 38, 39 अप टू 59 एंड B इज़ द सेट ऑफ 51, 52, 53 अप टू 79। तो इन टू सेट्स का अब हमने इन टू सेट्स में हमने देखना है कि क्या ये डिसजॉइंट सेट्स है या ओवरलैपिंग सेट्स है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर टू सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट आता हो तो वो डिसजॉइंट सेट होगा, और अगर टू सेट्स का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो और साथ
वो दोनों एक दूसरे के सबसेट्स न हो तो फिर वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इन टू सेट्स का जो इंटरसेक्शन है उससे हमारे पास ये सेट आता है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। और दूसरा ये कि ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद नहीं हैं। इसी तरह बी इज़ आल्सो नॉट ए सबसेट ऑफ सेट ए। बी जो है उसके तमाम एलिमेंट्स बी सेट ए में शामिल नहीं है, लिहाजा बी ए का सबसेट नहीं है। देयरफॉर ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। इसमें हमें ए सेट दिया है लेटर्स इन द वर्ड मून एंड बी इज़ द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड स्टार। तो यहाँ पे मून में MON ये हमारे पास है और स्टार में एस है, TA और R ये लेटर्स है। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो कोई भी लेटर कॉमन नहीं है, लिहाजा इन दोनों के इंटरसेक्शन से एम्प्टी सेट आता है। और जब टू सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो तो वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। लिहाजा A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स। शाबाश।